Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will be talking about some important and expected questions for the upcoming JK Bose physics paper. The examination is probably scheduled very soon, and I have done a deep analysis based on the last 4 to 5 years of question papers and board patterns. Now, before we begin, let me make it clear one thing. This is not the final or guaranteed paper, but rather a carefully studied analysis of what the board has been constantly asking over the years. These expected questions are meant to guide your preparation and help you focusing on the most important areas. Also, I strongly advise all students to go through the entire syllabus properly, because JK Bose often frames question in a way that touches every unit directly or indirectly. So treat this video as your directional roadmap, not a shortcut. It's just an advice. Plus, go through the syllabus. These are just the you will find a way out from this assistance. Okay, let's dive in. So the so the first very question which can be asked, very important thing, I guess the very important question is that uh, is this: using Gauss's theorem, drive an expression of electric field due to infinite long straight wire. Very important question, Gauss's theorem. It can be, it has been frequently asked in the previous years, and आज भी पूछा जा सकता है. What is second one? What is electric potential? Very 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 important question. What is electric potential? Drive an expression for electric potential at a distance from a charge plus q. प्लस क्यू से प्लस क्यू की डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, एक एक्सप्रेशन होती है इसके लिए, पढ़ा होगा आपने. तो ए पेपर में ही आता है ये, फर्स्ट सेकंड यूनिट में ही आता है ये, तो पढ़ा होगा आपने. तो ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके बाद थर्ड वन: derive an expression for force acting on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Also mention the cases when force is minimum and maximum. कंडक्टर्स में आपने पढ़ा होगा ये, इस पे आप ज़रूर नज़र देना इस वाले टॉपिक पे. what are diagrammatic what are diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances? Discuss their important properties. ये तीनों चीज़ें आप डिस्कस करेंगे, ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर वे में देखेंगे. what are diamagnetic, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये तीनों चीज़ें आप पूरा इस पर एनालिसिस करेंगे. ये पूछा जा सकता है. स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, वेट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाइगन्स प्रिंसिपल पूछा जा सकता है. डिस्क्राइब एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, derive an expression for its magnifying power when the image is formed at infinity. इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है, एक्सप्रेशन निकालनी है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का. ये भी आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स लाइट में आपने पढ़ा होगा. डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनोमीटर, ये पूछा जा सकता है. गैल्वेनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप पढ़ लीजिए. derive an expression for the capacitor of a pearl palette capacitor in the presence of dielectric slab between its plates. अगेन कैपेसिटर्स में से ये क्वेश्चन है. derive the lens makers formula for the convex lens. ऑप्टिक्स में क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स में. define electric potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड इसकी एक्सप्रेशन derive an expression for electric potential energy of a system of 2 point charges. 2 point charges में कैसे होती है, कैसे क्या एक्सप्रेशन रहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये इस पे आप ज़रूर देख लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच वेन डी ग्राफ जनरेटर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये ज़रूर आप पढ़ना. वेन डी ग्राफ जनरेटर, लेबलो डायग्राम, इसकी डायग्राम समेत ये चीज़ें आप पढ़ना. What is cyclotron? Discuss its construction, working and what are its limitations. साइक्लोट्रॉन पूछा जा सकता है. अब कुछ इसमें टॉपिक्स है जो शायद इस ईयर सिलेबस से डिलीट हुए हैं. प्रोबेबली सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट हुए हैं, तो आप प्लीज़ ये एज़ पर योर सिलेबस इसको कवर कर लेना.
तो सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इसमें डिलीटेड है। वो जेके बोस का जो डिवाइडेड सिलेबस है उसमें है ही नहीं, वो इस साल का डिलीट हुआ है। तो सेमीकंडक्टर्स का जो इसमें है ये आप प्लीज़ इसमें देख लेना। वैसे साइक्लोट्रॉन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। इसके बाद स्टेट एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, derive an expression for the magnetic field due to straight current carrying solenoid, ये आप पढ़ लेना। derive an expression for fringe width in Young's double slit experiment, very important topic। expression निकालनी है fringe width in Young's double slit experiment, ये आप ज़रूर पढ़ लेना। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें आपको वहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है और पार्ट मिलता है तो लॉन्ग आंसर टाइप में। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो शॉर्ट आंसर टाइप है, लाइक फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एट व्हाट पोजीशन द डॉट एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसी में आता है कि एट व्हाट पोजीशन द डॉट एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आप ज़रूर पढ़ लेना ये वाला टॉपिक। स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड फॉर सस्पेंशन ऑफ द कॉइल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मैंने पहले ही बोला है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज़रूर आप ये पढ़ लेना। गैल्वेनोमीटर पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद है स्टेट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, या वेव्स में आपने पढ़ा होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद कहाँ तक पहुँचे हम, हाँ EM वेव्स। इसके बाद फोर्थ वन, राइट फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस बतानी है। व्हाट आर कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में फिर से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज और स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम्स में। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ये आपने पढ़ा होगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, व्हाट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ 0.3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे ये वैल्यू, वहाँ पे कुछ और वैल्यू भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे यही दिया हो 0.3 किलोग्राम, वहाँ पे वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। आपको बस ब्रॉगलीज वेवलेंथ ये जो है इसकी एक्सप्रेशंस पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ना है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ draw the condition for balance of a Wheatstone bridge circuit, ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लेना। किरचॉफ्स लॉ बार बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। इसके बाद एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, येट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एंड एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेट अप रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन क्या है, ये आपको जो है एक्सप्लेन करनी है, किस तरह की रिलेशन होती है, इस्टेब्लिश्ड रिलेशन है, तो ये आपको बताना है। यूजिंग फेजर ट्रीटमेंट derive an expression for impedance and phase angle of LCR सर्किट। यहाँ पे कहीं पे ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्राइव ये तो है, ये आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। यूजिंग फेजर ट्रीटमेंट derive an expression for impedance and phase angle of LCR सर्किट। सर्किट्स में आप ये ज़रूर ये टॉपिक पढ़ लेना LCR सर्किट में। एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स। रिफ्रैक्शन थ्रू गिलास प्रिज्म एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है एक्सप्लेन करना है। गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियर फोर्स ये आपने पढ़ा होगा, वीक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या होती है, फिर न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे आता है और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पढ़ा होगा आपने। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये इनके बीच की डिफरेंस आपको बतानी है,
What is meant by the depletion region in adjunction diode? Explain its formation. Diodes में आपने पढ़ा है. Find the focal length of a combination of two convex lenses with focal length 15 cm and 30 cm held in contact. आपको expression याद रखनी है, फिर value कुछ भी आ सकता है. आप कॉम्बिनेशन में दो कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपके पास दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ आपको पता है, अब जब वो कंबाइंड है और आपको कॉम्बिनेशन में दोनों का निकालना है, तो एक्सप्रेशन है एक इसके लिए, वो एक्सप्रेशन आपको याद करनी है. यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो फिर वैल्यू कुछ भी हो तो आप फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हेन प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन? फिर से लाइट पे है, ये लाइट में है ये एग्जांपल ऑप्टिक्स में. तो ये वहाँ पे आप ये ज़रूर पढ़ना, ये भी प्रिज्म में ही आता है कि प्रिज्म जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे होता है तो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस की क्या रिलेशन बनती है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45. एंगल स्पीड ऑफ लाइट बताना है एक मीडियम में. एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है वो है 45. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? क्या कंडीशंस होती है इसके लिए? derive an expression for ready और बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. ये आप पढ़ लीजिएगा. स्टेट, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. हाउ कैन, ये असल में ये है हाउ कैन यू डिराइव इट यूजिंग बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे ये है, कैसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो. स्टेट एंड हाउ कैन यू डिराइव इट यूजिंग बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और क्वेश्चन. यूजिंग Biot law, derive an expression for magnetic field including at the angle of a circuit coil carrying current. फिर से current पे है ये. State and explain Lenz's law, derive an expression for impedance of LCR circuit. LCR circuit पहले ही मैंने बताया आपको, ये पढ़ने वाली चीज़ है, पूछा जा सकता है. What is nuclear fusion? न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन, जो दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, आप दोनों पढ़ लीजिएगा. न्यूक्लियर फ्यूजन गिव वन रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन, कोई रिएक्शन बतानी है न्यूक्लियर फिजन में, या न्यूक्लियर फिशन भी आप पढ़ लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं. एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो है इसके बेस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को आपने एक्सप्लेन करना है. हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज बाय डोपिंग विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम? ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद सेमीकंडक्टर्स में डिलीट हुए हैं प्रोबेबली. आप ये ज़रूर चेक करना, ये 26 वाला क्वेश्चन जो है ये शायद डिलीट हुआ है. फिर भी डिलीट हो के भी आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा. यूजिंग द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ इज पी एन डायोड यूजिंग एज अ फ्यूल वेव रेक्टिफायर. ये डायोड उसमें आप ज़रूर पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट आर आइसोटोप्स? वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी. व्हाट आर आइसोटोप्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स बताने. डिफाइन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. वेरी 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 इजी थिंग. Explain superposition principle of forces. very easy and very important thing. I mean इसमें फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस. ये आप पढ़ लीजिएगा, पहले ही आता है ये, पहले की एक दो चैप्टर्स में आप पढ़ लीजिएगा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है. व्हाट आर, क्या इसके बाद ये कुछ इस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स है. Give some important applications of eddy current. Okay. Define radioactive decay and state its laws. ये आप ज़रूर पढ़ लेना. Explain sky wave propagation and space wave propagation. Explain principle of potentiometer. Very important thing, potentiometer ज़रूर पढ़ लेना. Derive Einstein's photoelectric equation. very important, photoelectric equation. इसके बाद write down the main postulates of Bohr's model of hydrogen atom. important thing. केमिस्ट्री के रिगार्डिंग भी, फिजिक्स में भी. डिस्टिंग्विश बिटवीन पी एंड एन टाइप
एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर्स, पहली मैंने बताया सेमीकंडक्टर शायद डिलीट हुआ है, फिर भी आप एक चीज़ देख लीजिएगा। ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन डाटा रिसेप्शन, ये ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख लेना, ये वाला टॉपिक भी देख लेना। इसके अलावा वहाँ पे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ जनरली हर एक यूनिट से आते हैं, वो भी इन्हीं टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो इसके बगैर भी आप बाकी चीज़ें ज़रूर देख लेना, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ज़रूर देख लेना। स्पेशली मैं बताऊंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है ये आप सारे देख लेना, और बाकी जो इसी के अंदर ही बाकी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। एंड ये